गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿਕਨੌਫ ਲੈਮਾ। ਟਿਕਨੌਫ ਲੈਮਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਨੌਫ ਲੈਮਾ ਨੇਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ ਐਵਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਐਂਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਪੇਸ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਕਨੌਫ ਲੈਮਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਆ ਹੈ ਟਿਕਨੌਫ ਲੈਮਾ ਦੀ, every regular and line of space is normal space। ਜਿਹੜੀ ਵੀ regular and line of space ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, normal space ਬਣਦੀ ਹੈ। regular ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ regular। line of ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ previous chapter ਆਪਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ countable spaces, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ line of ਦੀ definition ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਨੀ line of ਦੀ definition ਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਕਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਵਰੀ ਓਪਨ ਕਵਰ ਹੈਜ਼ ਅ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸਬ ਕਵਰ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਓਪਨ ਕਵਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸਬ ਕਵਰ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਦੈਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪੈਕਟ। ਔਰ ਲਾਈਨ ਲੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪੈਕਟ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਵਰੀ open cover has a countable subcover। ਸੋ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਕੰਪੈਕਟ ਨਾਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ every open cover of X has a finite ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ countable subcover। ਮਤਲਬ countable ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, फाइनाइटली भी काउंटेबल हो सकते हैं, इनफाइनाइटली भी काउंटेबल हो सकते हैं। सो काउंटेबल और अनकाउंटेबल तुसी स्टडी कीता होया। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फाइनाइट ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ काउंटेबल। सो अगर ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਦਾ ਕਵਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇ ਦੈਨ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਸਬ ਕਵਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਜਾਏ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਪੇਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਪੇਸ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਐਂਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਪੇਸ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ। यस ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ let x tau be a regular and line of space to prove that x tau is a normal space। ਅਸੀਂ x tau ਨੂੰ normal prove ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ normal ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ disjoint close set ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ A ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ B ਲੈ ਲਿਆ, ਦੋਨੋਂ क्या है close set और दोनों disjoint है। disjoint ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦੀ intersection क्या है, phi। अगर ये दोनों डिसजॉइंट है ਇਹਦਾ मतलब अगर ਅਸੀਂ A ਚੋਂ ਕੋਈ एलिमेंट ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ B ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ if A belongs to A be any point then A B ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ B ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, B is a closed set not containing point A। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ A, ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਸੈੱਟ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਸ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਿੰਸ x tau is regular space, x tau ਸਾਡੇ ਕੋਲ क्या है, रेगुलर स्पेस है और रेगुलर स्पेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਓਪਨ ਸੈੱਟ A ਲਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ B ਲਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰੇਗਾ ਸੱਚ ਦੈਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ क्या ਹੋਏਗੀ, फाई ਹੋਏਗੀ। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, देखो ਪੁਆਇੰਟ A ਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ UA। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਸੈੱਟ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ, देयर एग्जिस्ट ओपन set UA containing point A and open set VA containing set B such that ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ क्या ਆਏਗੀ, equals to phi ਆਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਸੈੱਟ UA VA ਲਏ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼। ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਲੌਫ ਵੀ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲੌਫ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਓਪਨ ਕਵਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, स्पेस लाइन लॉफ होने करके ਉਹਦਾ फाइनाइट सब कवर भी एग्जिस्ट कर जाना, सॉरी काउंटेबल सब कवर एग्जिस्ट कर जाना।
ਨਾਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੈਸ UA क्या कर रहा है, A ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ अगर UA ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਰਬਿਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ ਸੀ, अगर UA A ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਅਸੀਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਸੀ, A ਚੋਂ। A ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਹੈ, A ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਓਪਨ ਸੈਟਸ ਹੈ, UA ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਓਪਨ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ A ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। A ਆਰਬਿਟਰੀ ਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ A1 ਆ, ਉਹਨੂੰ UA1 ਕੰਟੇਨ ਕਰੇਗਾ। A2 ਹੈ, ਉਹਨੂੰ UA2 ਕੰਟੇਨ ਕਰੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, UA। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ UA ਕਿਹਦਾ ਕਵਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, A ਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲਈ। ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਅ ਸੈਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ UA ਟਾਈਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, A ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ A is open cover of A। ਇਹ ਅਸੀਂ open cover ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲੌ ਵਾਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ। ਸੋ UA A belongs to A ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, open cover of A ਦਾ open cover ਬਣ ਗਿਆ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੇਸ ਲਾਈਨ ਲੌ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਲਾਈਨ ਲੌ ਸਪੇਸ ਚ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। we know that closed subset of line law space is line law। से रिजल्ट याद रखना है कि जेड़ा क्लोज्ड सबसेट हुंदा लाइन लॉ स्पेस दा वो भी क्या होएगा, लाइन लॉ ही होएगा। साडे को स्पेस है x साडे को लाइन लॉ है क्लोज सबसेट, ए ओदा की है, क्लोज सबसेट है। ए ऊपर लिखा हुआ है ना कि ए असी की लेके चले सी क्लोज्ड। सो ए क्लोज्ड है, केदा क्लोज सबसेट है, लाइन लॉ दा। सो ए भी क्या हो जाएगा, लाइन लॉ हो जाएगा। सो ए इज लाइन्ड लॉ। सो ए साडे कोल हो जाएगा लाइन्ड लॉ। नेक्स्ट है जे ए लाइन लॉ है दैट मीन्स ए ओपन कवर है, ए दा, ए लाइन लॉ है। जे ए लाइन लॉ है देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ लाइन लॉ देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल सब कवर ऑफ ए। देयरफॉर ए दा साडे कोल काउंटेबल सब कवर एग्जिस्ट करेगा। सो काउंटेबल सब कवर असी ले लिया, लेट यू काउंटेबल मतलब जिन्हों काउंट किया जाए UA1, इसे कवर चो, इस ओपन कवर चो असी फाइनाइट काउंटेबल सब कवर ले लिया UA1 UA2 UA3 अप टू सो ऑन। देखो अगर फाइनाइट लेंदे तो UAN ले लेना सी, बट ये फाइनाइट नहीं असी, क्योंकि साडा जेड़ा काउंटेबल दा मतलब फाइनाइटली भी हो सकता, इनफाइनाइटली काउंटेबल। बस काउंटेबल दा मतलब जिन्हों गिनिया जा सके, लाइक 1 2 3 4। सो असी लिया UA1 UA2 UA3 बी काउंटेबल सब कवर of A selected from open cover A। सो असी ए काउंटेबल सब कवर ले लिया किहदे चो, कवर चो। ठीक, सिमिलरली जिद्दां असी ये चीज कीती है, सिमिलरली असी करांगे जिद्दां असी पहला लिया सी A दा पॉइंट लिया सी, सो ये B च नहीं होएगा। हुण असी रिवर्स करांगे, हुण असी दूसरे ले लवांगे, कोई पॉइंट B दा लवांगे बट वो A नू बिलोंग नहीं करे, मतलब सारे स्टैप असी दोबारा रिपीट करांगे, B दा पॉइंट लेके चलांगे हुण। सो असी लिया इफ B बिलोंग्स टू B, यस असी हुण लिया B बिलोंग्स टू B बी एनी पॉइंट, देन B डज नॉट बिलोंग्स टू A, बिकॉज असी दोनों डिसजॉइंट ले सी। हुण B दा पॉइंट है, देन B A च नहीं होएगा। जिद्दां असी सेम उपर कीता दोबारा वही चीज रिपीट करन लगे हैं। सो A इज अ क्लोज्ड सेट नॉट कंटेनिंग पॉइंट B। सो A साडे कोल क्लोज सेट आ गया नॉट कंटेनिंग पॉइंट B, और साडे कोल एक्स्ट्रा किद्दां दी स्पेस है, रेगुलर स्पेस है। सेम असी जो उपर कीता वही रिपीट कर रहे हैं, बस पहला असी A दा पॉइंट लेके चले सी,
ਹੁਣ B ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ठीक है। सो A ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ क्लोज सैट है ਜਿਹੜਾ B ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, एक्स्ट्रा और रेगुलर स्पेस है, एक पॉइंट है, एक क्लोज सैट है। सो एक ओपन सैट ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ क्लोज सैट ਲਈ ओपन सैट ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਆ ਆਏਗੀ, फाई आएगी। सो ਅਸੀਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ, ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ओपन सैट डिफाइन करांगे ਉਹ B ਦੇ ਨਾਲ डिफाइन करांगे। सो ਅਸੀਂ रेगुलर स्पेस होने करके therefore there exist open set, देखो U भी असी ऊपर सपोज कर चुके हैं, हुण असी होर वेरिएबल लवांगे। सो असी ले ले WB containing B and open set ZB containing set A such that दोनों दी इंटरसेक्शन साडे कोल क्या आएगी, फाई आएगी। सो U भी असी ऊपर सपोज कर ले सी, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ W भी एग्जिस्ट कराया ਜਿਹੜਾ B ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ZB ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, A ਨੂੰ, ਸੱਚ ਦੈਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ, फाई। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਓਪਨ ਕਵਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਓਪਨ ਕਵਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ A ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ B ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਆ ਗਿਆ, देयरफॉर ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਕਵਰ ਲੈ ਲੈਣਾ WB, B belongs to be an open cover of B। सो ये B ਦਾ ओपन कवर बन गया, ठीक है। लाइन लॉफ करके इत्थे फाइनाइट सब काउंट सिमिलरली, सो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ सिमिलरली करके लिख लिया जिद्दां ऊपर स्टेप कीते, there exist countable सब कवर ऑफ काउंटेबल सब कवर, ਇਹਦਾ काउंटेबल सब कवर आएगा WB1 WB2 अप टू सो ऑफ B। सो ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਲਈ ਵੀ काउंटेबल सब कवर एग्जिस्ट कर गया, A ਲਈ ਵੀ सब कवर एग्जिस्ट कर गया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਥਿਊਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੀ ਜੋ ਗਿਵਨ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਨੈਕੀ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्रैमिंग है कि तुसी क्रैम करना है कि ये सैट असी डिफाइन किते दे विच डिफाइन सैट्स असी U1 डैश U2 डैश U3 डैश अप टू सो ऑन W1 डैश W2 डैश W3 डैश अप टू सो ऑन एज। देखो U V W Z वो असी ओपन सैट उपर लए सी, हुण असी एक U1 डैश U2 डैश ये सारे सैट डिफाइन करन जा रहे किद्दां। मैं कला कला तो नहीं लिखूंगी, इन्हां दा जर्नल लिखन लगी UN डैश। यस UN डैश मैं किद्दां डिफाइन किया, UAN जिहड़े U एग्जिस्ट कर रहे सी A1 A2, सो UAN माइनस यूनियन I वेरिंग फ्रॉम 1 to N WBI दा क्लोजर। देखो मैं किद्दां डिफाइन किया, ਉਹ सैट जिहड़े A ਨੂੰ कंटेन कर रहे हैं ਤੇ ਉਹ ਸੈਟ ਜਿਹੜੇ B ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸੈਟ ਦਾ ਕੰਬੋ ਮੈਂ UN ਡੈਸ਼ ਲਿਆ, UAN ਚੋਂ ਮੈਂ WBI ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਈਨਸ WBI ਦੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ UAN ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਸੀ, ਓਪਨ ਸੈਟਸ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਲੋਜ਼। ਸੋ फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सैट इज क्लोज। सो ये की है साडे कोल क्लोज्ड सैट। अगर असी ओपन सैट चों क्लोज सैट माइनस कर देंगे सो साडे कोल क्या बचेगा, ओपन सैट ही आएगा। सो विच इज इक्वल्स टू ओपन सैट। जस्ट लिखिया है कि साडे कोल यू एंड डैश ओपन ही बननगे। नैक्सट सिमिलरली जिद्दां असी यू एंड डैश डिफाइन किया इदां असी डबल्यू एंड डैश डिफाइन करता। वो किद्दां लिया, W BM माइनस यूनियन J वेरिंग फ्रॉम 1 to M UAJ दा क्लोजर। देखो जब लैने असी U और W दे नाल ही बनाए, पहले U एंड डैश बनाया, U एंड डैश दे विच पहला UAN, सिमिलरली जो W एंड डैश डिफाइन किया और WBN बिकॉज WB वाले लिए डिफाइन किया सी, U असी A लिए डिफाइन किया सी। सो U एंड डैश UAN, W एंड डैश WBM वेरिएबल अलग अलग देते NM। इचो माइनस असी W वालियां दा क्लोजर किया, इचो माइनस असी UA वालियां दा
क्लोजर कर दिता। ठीक है, सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ W वाले ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ओपन सेट्स माइनस क्लोज सेट। सो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ क्या बनेगा, ओपन सेट ही बनेगा। सो याद रखना है ਸਾਡੇ ਕੋਲ U n डैश ਤੇ W n डैश ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ डिफाइन कर सकते। ਇੱਥੇ अगर n ਨੂੰ 1 फिल करिए सो ਸਾਡੇ ਕੋਲ U1 डैश आ जाएगा, 2 फिल करिए U2 डैश, 3 फिल करिए U3 डैश। सिमिलरली अप टू सो ऑन मैं जनरली डिफाइन करते UN डैश ते WN डैश। सो ये तो मेरे को डिफाइन हो गए। नेक्स्ट में लिया लेट U। देखो मैं U क्या लिया होया, इन्हां सारे सेट्स की यूनियन, मतलब मैं लिया यूनियन n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी U n डैश, n मतलब U1 डैश यूनियन U2 डैश यूनियन U3 डैश यूनियन U4 डैश। सो मैं जर्नली लिख लिया U n डैश जर्नल दी यूनियन n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी विच इज इक्वल्स टू मैं U n डैश मेरे को क्या है, ओपन सेट। सो आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट भी क्या आएगी, ओपन। दिस इंप्लाइज U की होएगा ओपन सेट। एंड W ਨੂੰ मैं क्या लिख लिया, यूनियन ऑफ W वाले सेट्स सी यूनियन n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी W n डैश विच इज इक्वल्स टू ओपन सेट। हुण देखो स्टूडेंट्स असी क्या किया, बस आ चीज याद रखनी जो असी डिफाइन की है। हुण देखो असी प्रूव करना चाहते क्या सीगे, असी स्पेस नू नॉर्मल प्रूव करना। नॉर्मल लई असी दो डिसजॉइंट क्लोज सैट लैके चले सी। हुण प्रूफ ते पहुंचन लगे सी, असी एक इहदे लई ओपन सैट एग्जिस्ट करावांगे, एक इहदे लई। सो साडे कोल ओपन सैट एग्जिस्ट कर चुके, एक U कर गया, एक W कर गया। हुण किसी तरह असी क्या प्रूव करना, U A नू कंटेन कर रहा, W B नू। सो नैक्सट साडा जो क्लेम है, मतलब जो असी प्रूव करना, वी क्लेम दैट, असी क्लेम करता वट क्या करना सी, U कंटेनिंग A एंड W कंटेनिंग B। हुण असीं ये प्रूव करांगे ये जिहड़े दो ओपन सैट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये U A नू कंटेन कर रहा, W B नू कंटेन कर रहा। असीं एक लई प्रूव कर दांगे, दूसरे लई सिमिलरली लिख दांगे। सो असीं हुण प्रूव करना है A इज ए सबसैट ऑफ U, A नू U दा सबसैट प्रूव करना। सो असीं A चों कोई एलीमेंट लैके चलांगे, U नू बिलोंग करा दांगे, दैन A सबसैट हो जाएगा U दा। बट U नू बिलोंग करन लई U दी फॉर्म है UN डैश टाइप, मतलब अगर किसी भी एलीमेंट ने U च जाना है, मतलब उन्होंने किस च आना पैना, UN डैश। UN डैश च आने लई उहदी फॉर्म इस तरह की होनी चाहिए है। मतलब तुसी कोई A दा एलीमेंट लैके चलना, उहदी फॉर्म इस तरह की बना देनी, मतलब वो इस सैट नू अगर बिलोंग करेगा दैन UN डैश नू करेगा, UN डैश करेगा दैन यूनियन च आ जाएगा, यूनियन जाएगा दैन U च जाएगा। ठीक, सो असी पहला A दा एलीमेंट ले लीए, लेट A बिलोंग्स टू A बी एनी पॉइंट। असी A बिलोंग्स टू A कोई पॉइंट ले लिया। ठीक, हुण देखो असी किसी तरह इन्हां च लेके जाना, A नू इस सैट च लेके जाना और इस सैट च लेके जाना, माइनस च लेके जाना। ठीक है, सो असी लेके चल पे, सिंस असी इन्हां दी गल कर रहे UAI दी, सानू पता है UA1 UA2 अप टू UA3 अप टू सो ऑन इज कवर ऑफ A। सो साडे कोल A दा कवर बन रहा सी, स्मॉल A दा। यस असी ऊपर ही करके आए हैं, A बिलोंग्स टू A इनफाइनाइट ए जिहड़ी कलैक्शन है ओपन कवर किहदा बन रही सी, A दा बन रही सी, कैपिटल A दा। ठीक है, अगर ये ओपन कवर बन रही सी देन बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन कवर A इज अ सबसेट ऑफ यूनियन I वेरिंग फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी UAI, बिकॉज कवर दी डेफिनेशन लगाई, यूनियन I वेरिंग फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी UAI। हुण A च है, असी A दा एलीमेंट लिया, दिस इंप्लाइज A किहदे चला जाएगा, यूनियन च। अगर यूनियन चला गया, दिस इंप्लाइज A बिलोंग्स टू एटलीस्ट 1 UAI, घट्टो घट एक UAI च जाएगा। से असी ले लिया A बिलोंग कर रहा UAR नू बिलोंग कर रहा। ठीक है, सो असी एक सैट नू बिलोंग कराना सी, जे UN डैश लिख देता UAN नू, सो असी इत्थे लिख लिया से A बिलोंग्स टू UAR। सो साडा अद्धा काम तो इत्थों पूरा हो गया। नाउ हुण असी इहदी गल करिए WBI क्लोजर दी। नाउ A H है एंड
A ਕਿਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ ZB ਦਾ। ਯੈਸ, ਇੱਕ ਕਵਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ A ਕਿਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ZB ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਬਸੈਟ ਹੈ। ਯੈਸ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਚੋਂ A ਕਿਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ ZB ਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ZB ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ A ਕਿਹਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ZB ਚ। ZB ਕੀ ਹੈ ओपन सेट। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ZB is open set containing A। this implies ZB ਕੀ ਆ ਗਈ neighborhood of A। neighborhood ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ, neighborhood ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ open set ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ A ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹਦੀ neighborhood। since A सबसेट है ZB ਦਾ, WB ਤੇ ZB ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ phi ਹਰੇਕ B ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ WBI ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ZBI ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ phi for all I ਹਰੇਕ I ਦੇ ਲਈ। this implies WBI ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ neighborhood of A ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ phi। neighborhood of A ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ phi। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਡਹੀਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਟ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਨਾਲ ਅਗਰ phi ਹੋ ਜਾਏ ਦੈਨ A ਇਹਦਾ ਐਡਹੀਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ A is ਐਡਹੀਰੈਂਟ ਜਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਪੁਆਇੰਟ is not contact point of WBI। ਸੋ A WBI ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। this implies ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ A does not belongs to WBI closure for all I ਹਰੇਕ I ਲਈ ਇਹ WBI ਨੂੰ belong ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। this implies ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ this implies A does not belongs to WB1 closure, A does not belongs to WB2 closure up to so on and A does not belongs to ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ UAR ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ does not belongs to WBR closure। this implies A does not belongs to union I varying from 1 to R WBI closure। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ UN dash ਜਾਣਾ। ਸੋ UN dash ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਏਦਾਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ UAR ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਉਹ ਇਹਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ thus ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ A UAR ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ and A does not belongs to union I varying from 1 to R WBI closure। this implies ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ A belong ਕਰ ਰਿਹਾ UAR minus union I varying from 1 to R WBI closure। ਸੋ ਅਗਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ N ਹੈ then UN dash ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ R ਹੈ I ਵੀ varying from 1 to R ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ UR dash। this implies ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ A belongs to UR dash ਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ A ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ A ਕਿਹਦੇ ਚ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ U ਚ। A ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ U ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ UN dash ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਗਰ UN dash ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਦੈਨ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ U ਦੇ। this implies A ਅਗਰ UR dash ਹੈ this implies UR dash ਕਿਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ। union I varying from 1 n varying from 1 to infinity UN dash। this implies A belong ਕਰ ਗਿਆ union ਨੂੰ ਔਰ union ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ U ਦੇ। this implies ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ A belongs to U। ਸੋ A ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਅਸੀਂ A ਦਾ ਬਣਾਤਾ U ਦਾ ਮੈਂਬਰ therefore ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਕਿਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ U ਦਾ। this implies U A ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਟੇਨ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ W ਨੂੰ ਵੀ W ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ B ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ A ਤੇ B ਦੋ
क्लोज सैट लैके चले सी, एक इहदे लई ओपन सैट एग्जिस्ट कराया, एक इहदे लई U A नू कंटेन कर गया, V B नू कंटेन कर गया। बस एक लास्ट स्टैप रह गया, असीं दोनों दी इंटरसैक्शन नू क्या प्रूव कर दईए, फाई। नाउ हुण असीं क्या क्लेम करना, नाउ वी क्लेम दैट U इंटरसैक्शन W इक्वल्स टू 5। V ने इत्थे W एग्जिस्ट कीता सी, ठीक है। सो हुण असीं दोनों दी इंटरसैक्शन 5 प्रूव करांगे। इफ पॉसिबल असीं उल्टा लैके चले, इफ पॉसिबल let U इंटरसैक्शन W इज नॉट इक्वल्स टू 5। ये 5 नहीं है, अगर ये 5 नहीं है देन कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा, से X बिलोंग कर रहा U इंटरसैक्शन W नू। दिस इंप्लाइज X U च भी होएगा एंड X W नू भी बिलोंग करेगा। अगर X U च होएगा, U दी फॉर्म साडे कोल किस तरह दी है, U असीं लिया यूनियन N वेरिंग फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी U N डैश। दिस इंप्लाइज ए बिलोंग कर गया यूनियन N वेरिंग फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी U N डैश एंड X बिलोंग्स टू W, W दी फॉर्म भी असीं लई है यूनियन N वेरिंग फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी W N डैश। दिस इंप्लाइज अगर X यूनियन च है, सो असीं कह सकते X बिलोंग्स टू एटलीस्ट 1 UN डैश, घट्टो घट एक UN डैश होएगा, एंड X बिलोंग्स टू एटलीस्ट 1 WN डैश, ठीक। सो इहदी M लई सी, सॉरी फॉर्म असीं WM। यस इत्थे करैक्ट कर लियो, इत्थे U लई N लिया सी, W लई M लिया सी, सो इत्थे भी साडे कोल आएगा M डैश, ठीक है। सो X बिलोंग्स टू एटलीस्ट 1 UN डैश। सो असीं जिहड़ा जिहनूं बिलोंग कर रहे वो ले लिया से X बिलोंग्स टू UL डैश एंड X बिलोंग्स टू WK डैश, ठीक है। X UN डैश नू बिलोंग कर रहा, सो वाला UN डैश असीं UL ले लिया, ਜਿਹੜੇ WM ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ K ਲੈ ਲਿਆ। ਵਿਦਆਊਟ ਲਾਸ ਆਫ ਜਨਰੈਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ L ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ K ਤੋਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ L ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਯੈਸ, ਅਸੀਂ WK ਡੈਸ਼ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਕਿਆ ਹੈ। WN डैश की डेफिनेशन है WBM माइनस यूनियन। अगर असीं इत्थे K लगा दिए दैन बनेगी WBK माइनस यूनियन UAJ, ठीक है। सो असीं इस नूं लिख लिया WBK माइनस यूनियन J वेरिंग फ्रॉम 1 टू K यूनियन AJ दा क्लोजर। दिस इंप्लाइज हुण देखो साडे कोल X के नूं बिलोंग कर रहा, नाउ X साडे कोल है WK डैश और WK डैश की फॉर्म है ए वाली। दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू WBK माइनस यूनियन J वेरिंग फ्रॉम 1 टू K यूनियन UAJ दा क्लोजर। इत्थों की है, दिस इंप्लाइज X डज नॉट बिलोंग्स टू यूनियन J वेरिंग फ्रॉम 1 टू K UAJ दा क्लोजर एंड X बिलोंग्स टू WBK। इत्थों क्या बनया, X WBK च तां है बट इहदे विच नहीं है, ठीक है। अगर इहदे विच नहीं है, दिस इंप्लाइज अगर यूनियन च नहीं आ रहा मतलब किसी भी मैंबर च नहीं होएगा, सो असीं लिखिआ X डज नॉट बिलोंग्स टू UA1 क्लोजर एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू UA2 क्लोजर एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू UA3 क्लोजर अप टू सो ऑन X does not belongs to UAK क्लोजर, ठीक है। लास्ट K है ना। हुण देखो अगर AK क्लोजर नूं नहीं बिलोंग कर रहा, इस तो पिछे किते साडे कोल L भी तो आ रहा सी, क्योंकि L असीं लिया सी K तो क्या छोटा, विदाउट लॉस ऑफ L इज लैस दैन K। अगर K नूं बिलोंग नहीं कर रहा, सो X इत्थे क्या आएगा, किते डज नॉट बिलोंग्स टू UAL क्लोजर भी आएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज साडे को क्या बनया, X डज नॉट बिलोंग्स टू UAL क्लोजर। दिस इंप्लाइज X डज नॉट बिलोंग्स टू UAL बिकॉज सानू पता A इज ए सबसैट ऑफ A क्लोजर। अगर A क्लोजर नूं ही नहीं बिलोंग कर रहा दैन उस सैट नूं भी नहीं बिलोंग करेगा। हुण देखो X UAL दे क्लोजर नूं बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब UAL नूं भी बिलोंग
नहीं करेगा। सो x साडे को किद्दां दा पॉइंट बन गया जिहड़ा w वाले सैट नूं तां बिलोंग कर रहा बट इनू बिलोंग नहीं कर रहा। सो असीं इत्थे लिख दिता x डज नॉट बिलोंग्स टू UAL माइनस यूनियन लै ली असीं यूनियन I वेरिंग फ्रॉम 1 to L WBI क्लोजर, क्योंकि WBK किहदा सबसेट होना अपने क्लोजर दा। अगर x इनू बिलोंग कर रहा उहदे क्लोजर नूं भी बिलोंग करेगा, अगर क्लोजर नूं बिलोंग करेगा दैन उहदी यूनियन नूं भी बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू UL डैश बिकॉज UN डैश दी फॉर्म है UN माइनस, अगर असीं इत्थे L पा दईए UAL माइनस यूनियन WBI I वेरिंग फ्रॉम 1 to L। सो साडे कोल की बन गया UL डैश। साडे कोल तां आ गया x डज नॉट बिलोंग्स टू UL डैश, बट इत्थे तां असीं लिखिया है कि x UL डैश नूं बिलोंग कर रहा सी, लैके चले सी x UL डैश नूं बिलोंग कर रहा सी, बट असीं लिख दिता है x UL डैश नूं बिलोंग नहीं कर रहा, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज contradiction as x belongs to UL dash. So our supposition is wrong. Therefore ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ कि U इंटरसेक्शन भी W फाई नहीं है। सो साडी सपोजिशन रॉन्ग होगी, ए की है फाई। सो साडी थ्योरम प्रूव होगी। दस ਅਸੀਂ कॉन्क्लूड किया दस for all disjoint closed sets A and B there exist open sets U containing A and open set W containing B such that दोनों दी इंटरसेक्शन क्या आएगी फाई, हैंस एक्स टाउ साडे कोल क्या हो गई नॉर्मल स्पेस। सो साडी थ्योरम इहदे नाल प्रूफ हुंदी है। सो स्टूडेंट ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनू बार बार याद करना है और लिख के देखना है, 2 या 3 बार जरूर लिख के देखना है इस थ्योरम नू। थैंक यू।